are those lukhas who are just on the internet. True. Sorry, but yeah, that is a word. Same thing happened to me with the same specific airlines 4 दिन पहले. When I was trying to put it, I was literally giving them a धमकी. Yeah. तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, सब नींद में है क्या? मेरा ऐसा दिमाग हो गया था. When I was to sing a song जरा जरा minus track, तो तब तक कोविड खुल गया. Saregama said we want to sign you for a 6-song deal and we'll do 6 covers together, and I was like what? ये क्या था? मम्मी का तो आजकल योगदान है, वो सुबह सोने भी नहीं देती. उठो, काम पे जाओ. हाँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत सिंपल थी. मतलब मैं स्कूल में, कभी आप मेरी स्कूल की पिक्चर देखोगे, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो बाल खोल के भी जाती है. मैं हमेशा पोनी लगा के अच्छे से, टाई, वो टॉप का जो बटन होता है वो भी अच्छे से लगा होता था. नो ज्वेलरी, नो इयररिंग्स, नथिंग, वेरी लाइक यू नो नॉर्मल सिंपल गर्ल. थोड़ी किसी काम दी नहीं है. बस फैशन कर दी है बिकॉज टिपिकल पंजाबी फैमिली. थोड़ा ज़्यादा हंस लेती है या थोड़ी सी बचकानी बातें कर लेती है तो डम है. Exactly. वेरी कॉमन थिंग. यू आर डम. Dumb. अरे Yeah. आई एम नॉट डम. हैव लर्नड दिस थिंग इन दिस journey not to expect anything from anyone. I've started living in the moment. कि अभी मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ. I don't like it. Yeah. उस टाइम मैं बोल देती हूँ प्लीज मेंटेन डिस्टेंस. Right. ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद. मुझे चिपको मत बहुत ज़्यादा. Hello everyone, this is Hesha Chima and joining me here for a conversation today, very safe to say, is yet another famous, super successful and equally humble Chopra girl here. No cookie points for guessing, I'm in conversation with not just mine but everybody's favorite, Manara Chopra. Hi! Hi, thank you for a very lovely and a warm introduction, Hesha. You know Manara, you deserve it and I'm somebody, अगर ये दिल से बात निकली तो ये एक फ्लो में टेक भी हो गया है. अरे क्या बात है, मतलब अब मैं लोगों के दिल में बस चुकी हूँ. ये तो आपको पता है ना वैसे तो. I'm sure you know it. It's not news to you. But जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, let me tell you guys, we are actually shooting this one day before Manara's birthday. कल Oh my आपका God. birthday है, तो happy birthday in advance, Manara. Thank you so much, and it's such a pleasure to be spending time with your team members on your YouTube channel, and especially with you. You're doing a commendable job, and with my lovely audience. Oh, thank you, Manara. Thank you so much. But today is a very special day for you, and it's because you've also extended yourself into a different branch, जो है music. Yes. Singing हो गया है. तो क्या ये safe to say कहना होगा कि Chopra sisters are very good with singing क्योंकि अब आप ही बची थी. Oh my God. Well, I would not say I am somebody who's supremely talented in terms of singing, but this is something which I enjoy for myself. And there are certain songs which I relate to. Some lyrics I relate to, and I have a lot of friends who are like singers, and they are like, "Chal, garaga." Automatically, I'm like, "Nahi, I don't want to sing. I'm feeling shy." But I think it just started like that, and now I'm pursuing it. And I'm blessed that because of that I'm extending myself in a different field altogether, meeting people of a different fraternity, whether there are people behind the camera or there are people on the camera, and also lyricists, music producers. Oh my God, and the list just goes on. Oh God, but ये जर्नी कैसी रही है? Like हम सब कहीं ना कहीं अगर हम एक प्रोफेशन में जाते हैं, वो पहले बिहाइंड द डोर्स होता है. Like जैसे मुझे पता था कि मुझे हमेशा से एंकरिंग करना है. Oh lovely. देखो तो मिरर के सामने हम शुरू हो जाती थी कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड सिंगिंग भी है, सिंगिंग को डांसिंग का बड़ा शौक होता है, हम सबको होता है Yes. बचपन से. मैं थी बाथरूम सिंगर. अरे वाह, आपकी ये शौक- भी एक सिंगर तो थी ना. आपका ये शौक कहाँ से और कब से शुरू हुआ? I think it started there in my school. तो स्कूल में हमारा जब SUBW क्लासेस होते थे, तो उसमें मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक लिया हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पेंटिंग लिया हुआ था, जिसमें मैं स्टिल लाइफ सीखती थी. तो पेंटिंग का तो जो पैशन था वो मेरा फैशन डिज़ाइन से पूरा हो गया. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड देयर, एंड उसमें मैं बहुत सारी स्केचेस करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था. मैंने कुछ स्केच करा है, वो अप्रूव हुआ है डिज़ाइन, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द मार्केट सिनेरियो व्हिच कम्स इन प्लेस. Yeah. और वो इंटरनेशनली शिप होगा, करोड़ों का सामान जाएगा. एंड जो सिंगिंग था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक बैंड देयर इन माई स्कूल. तो
तो वो सबसे फेवरेट टाइम होता था क्रिसमस के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पूरा choir ग्रुप होता था, वी यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ क्रिसमस कैरोल्स एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. और थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो हमें भेजते थे. एंड मुझे भी सिलेक्ट किया, बिकॉज मैं तो बहुत शाय और बहुत ही ऐसे ऐसे रहती थी स्कूल में, यू नो, नॉट इवन लाइक आई नॉट इवन सिट लाइक दिस, आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ जी मैम, हाँ जी दिस, आई यू नो लाइक अ टीचर सेइंग दैट आई वांट दिस गर्ल, कम हियर. सो दैट इन इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग. और स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो उसमें गाते थे हम जन गण मन. आई थिंक वहीं से शुरू हुआ था. एंड माई मदर, शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है कर्नाटक म्यूजिक में. वाओ. तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा वहाँ से भी आ ही गया है. दैट्स ट्रू. यू नो, आपने मम्मा की बात की, हम जस्ट मिले अभी आंटी से थोड़े टाइम पहले, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी जब आपकी मॉम स्पेसिफिकली आपके फैमिली में से जो आपके क्लोजेस्ट हो, वो एक पिलर की तरह आपको अपने विजन में सपोर्ट करे. Yes. क्या योगदान रहा है मम्मा के सपोर्ट का? मम्मी का तो आजकल योगदान है, वो सुबह सोने भी नहीं देती. उठो, काम पे जाओ. इट्स लाइक मम्मा कभी तो सोने दो. बट आई थिंक माई मदर, दैट्स वन जोक अपार्ट दो, बट माई मदर, शी प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मी एंड माई सिस्टर्स अपब्रिंगिंग. बिकॉज हमें बचपन से ही सिखाया गया है, क्योंकि मेरी मम्मी भी हैं, हमेशा से यू नो काम करती रही हैं. बचपन से ही उन्होंने बहुत, मतलब शी वॉज नर्सरी में, शी वॉज अ नर्सरी टीचर. She was a teacher in one of the schools, and then उन्होंने कुछ अपने businesses करे, और मम्मा ने फिर अपना डायमंड का बिजनेस करा. और अब मेरी सिस्टर ने उनका बिजनेस ज्वाइन किया है. और हमेशा से हम दोनों को यही सिखाया गया कि लड़कियों को अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए. एंड इन फैक्ट आई वुड से माई मदर वॉज अ वन टू पुट मी इन दिस प्रोफेशन. मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत सिंपल थी. मतलब मैं स्कूल में, कभी आप मेरी स्कूल की पिक्चर देखोगे, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो बाल खोल के भी जाती है. मैं हमेशा पोनी लगा के, अच्छे से टाई, वो टॉप का जो बटन होता है वो भी अच्छे से लगा होता था. नो ज्वेलरी, नो इयररिंग्स, नथिंग, वेरी लाइक you know, normal, simple girl. But my mom discovered that this is another side of me, and not just like, but my father at the same point of time was very much like that. Even if you want to pursue this particular career, आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. So then I graduated. I worked for a while. I got an exposure to be interacting with people all over the globe, you know, because I was working at a buying agency as a product development person. मतलब स्केचिंग एंड प्रोडक्ट डेवलप करना, उसको शिप करना. सो यू हैव फॉरेनर्स कमिंग अलग अलग कंट्रीज से, सो यू इंटरेक्ट विद द बायर्स. आई काइंड ऑफ लाइक ग्रूम माई सेल्फ. मेरी वोकेबलरी बेटर हुई. मैंने अपने आप को देखा कि वर्ल्ड में आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो. एंड देन आई गॉट इन टू दिस प्रोफेशन, एंड नाउ आई थिंक even if I have to go and speak at length for like half an hour, 30 minutes, 40 minutes in front of the world or whosoever concerned, with all due respect, I can do it. So I think it's all because of the grooming which has been given to me by my parents. And it was just not like कि अच्छा अभी तुम वो मेरा नहीं था कि अच्छा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो अच्छा पढ़ाई छुड़वा दो 8th 9th में, क्योंकि मैं कितनी लड़कियों को यहाँ पे देखती हूँ 8th 9th किया, 10th किया, 12th किया, आ गए. ऐसा नहीं था मेरे केस में. पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं, एंड यू नो एवरीबडी इंजीनियर्स हैं. डैडी के साइड से सब दे ऑल आर ब्यूरोक्रेट्स. तो आई थिंक वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत था. नहीं तो सीधा बोलते हैं कुड़ी किसी काम दी नहीं है बस फैशन कर दी है, बिकॉज टिपिकल पंजाबी फैमिली. तो आई थिंक आज जब सबके बीच में बैठते हैं तो अच्छा लगता है कि यू नो पढ़ाई भी करी हुई है. हाँ, ऑफ कोर्स. एंड यू नो मैं अक्सर ये पूछती हूँ लोगों से, स्पेशली वुमेन, क्योंकि हम लड़कियों को काफ़ी डिस्काउंट किया जाता है. सबको लगता है कि क्योंकि हम सुंदर है या हमारे इंटरेस्ट सिर्फ फैशन या मेकअप में है तो भाई दिमाग तो है ही नहीं. सुंदर है तो दिमाग नहीं होगा. एंड दैट इज जस्ट सो रॉन्ग एट ऑल लेवल्स, राइट? बिकॉज वी आर हैशटैग नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस, वी आर मोर देन एग्जैक्टली. या थोड़ा ज्यादा हंस लेती है या थोड़ी सी बचकानी बातें कर लेती है तो डम है. एग्जैक्टली. वेरी कॉमन थिंग, ये यू आर डम.
अरे Yeah. I'm not dumb. I might just speak like that, but मेरे पास दिमाग है हाँ, मतलब बिल्कुल एंड आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप बिकॉज कई बार ये हम लोगों के साथ होता है. आई थिंक जो बॉक्सिंग हम इंडस्ट्री में बात करते हैं उससे पहले ही हम लड़कियां काफी ज्यादा बॉक्स हो ही जाती है. I agree. तो ये बॉक्सिंग के बारे में हम क्या ही बोले. I know. बट यू नो मनारा, आई हैव टू से आपने बहुत ही सीमलेसली, ये ऐसे लगता है बट आई एम श्योर आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो रहे ही होंगे, टू ट्राई लाइक ऑल द वे ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म्स टू डूइंग देन अ टीवी रियलिटी शो टू कंटिन्यूइंग टू डूइंग नाउ सिंगिंग एंड आल्सो डूइंग योर शोज side by side, right? Talk to me about those one or two moments that really changed Manara as, like, let's say a human, but थोड़ी deeper level पे ये experiences ने आपको कैसे shape किया? I think I have learned this thing in this journey not to expect anything from anyone. Because in this journey, when you are growing, there are very few people and they are very basic kind of people who support you to grow up to next level. Yeah. And the people you feel are like, you know, they should be there, they will understand your journey, they are not there. True. But at the same point of time, when you grow there, those same people जिनका उतना वो नहीं था, they will come and give you suggestions and you know things. तो मुझे अब मैं सबको I don't expect anything from anyone. सक्सेस के साथ लोग बदले ना. हाँ, सक्सेस के साथ आपके लोग बदलते हैं और मुझे पता है सक्सेस जो होता है ना, अभी मैं इधर हूँ, मुझे अभी और ऊपर जाना है. मैं तो बिलीव करती हूँ कि मतलब मेरे को और ऊपर जाना है और मैं जाऊँगी भी. बट कभी लाइफ में वो भी पॉइंट आएगा कि मैं ड्रॉप हो सकती हूँ. तो अगर आज कोई इंसान मेरे पास है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि जब मैं बहुत पीक पे जाऊँ वो मेरे साथ वैसे ही रहे. हो सकता है वो मुझसे जेलस हो जाए, या हो सकता है कोई और रीज़न से डिस्टेंट हो जाए, या हो सकता है बहुत क्लोज भी हो जाए, या हो सकता है उस टाइम पे जब मैं बहुत पीक पे जाऊँ तो मेरे साथ हो, बट जब मैं ड्रॉप हूँ तो वो हो ही ना. तो मैं अभी किसी से आई स्टार्टेड यू नो लिविंग इन द मोमेंट कि अभी मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, और उसके बाद नथिंग लाइक यू नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर मेरी किसी के साथ 4 घंटे बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है तो मैं उससे अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, जो मैं शायद पहले करती थी ऑन ह्यूमन लेवल. बट नाउ आई डोंट, आई फील जस्ट लाइक यू आर गुड, आई एम गुड, लेट्स गो एंड फाइंड आवर रिस्पेक्टिव जर्नी. I don't know if that makes sense. No, it does, of course. I think you're beautifully detached from things that are happening around you, including people. Yeah, I think that I relate to it. And ये हो जाता है with age. We all like mature. Yes. And that's when we understand. As teenagers, probably we don't have that understanding. Yeah, you're like, this is my everything. Best friend. और फिर पता चलता है क्या best friend? No concept. What are we talking? But speaking of friendships as well, I'm sure during the course आपने दोस्तियाँ बनाई भी होंगी, right? And one of the things that I saw, which I really liked, was yesterday you put up this beautiful reel with you and Ankita Lokhande, and that just picked up like crazy. Everything that you guys do online becomes viral. I think Manara, आपकी fan following काफी loyal है, and when you club yourself with somebody who's equally famous, like what do you all plan? Like what conversations you have कि चलो आज ये reel बनाते हैं? Like how do you all do this? I really want to know. You know, I'm just not a real kind of a person. मैं तो कभी कुछ बना लिया तो बना लिया, but she really enjoys making a lot of reel what I see on set. And if somebody tells me let's make a reel, I'm like चलो बना लेते हैं. But I am not somebody who keeps up to the trend. I'm a very impromptu person. अच्छा मुझे गाना अच्छा लग रहा है, I want to do something, I'll do it. Right. I am not somebody who's planning my calendar of Instagram. I'm very organic that way. मुझे मन है, मैंने कर लिया, और नहीं किया तो नहीं किया. तो जब उन्होंने बोला रील बनाते, मैंने कहा चलो बनाते हैं. एंड आई डोंट लाइक सेइंग नो टू पीपल, यू नो, एंड शी वांट्स टू मेक इट. आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हर एंड उनके हस्बैंड के लिए भी, उनकी पूरी फैमिली के लिए. वो बहुत अच्छे लोग हैं. इनफैक्ट व्हेन आई वेंट फॉर होली पार्टी, तो उनकी एक एक मासी मुझे इतना हक कर रही थी, इतना ऐसे मतलब एक पता चलता है यू नो, ऐसे गले लगा के हाय तो तू बहुत ही अच्छी है ये वो. उनकी सारी मासियाँ और इवन भैया जो है, भैया के डैडी इतने अच्छे थे, और आंटी तो मतलब बहुत प्यार से रखती हैं. तो जब मुझे स्पेशली जब बड़े लोग प्यार दिखाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे वो सच में लगता है दैट वो लोग तो अपनी ज़िंदगी यू नो कितनी जी चुके हैं, और जब वो लोग को इतना एक्सपीरियंस होता है यू नो, और जब
वैसे लोग हमें प्यार करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेना नहीं हमको है। उनसे कुछ नहीं चाहिए, बट वो जो एक जप्फी होती है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आंटियों के साथ गप्पे मारना और उनके साथ खी खाका करना। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे बस अपनी एज वालों के साथ घूमना है या मुझसे जो छोटे हैं उनके साथ घूमना है। मुझे हर एज ग्रुप के साथ मजा आता है। लवली। ऑल्सो मनारा आपकी एक बहुत सी मतलब इट्स वेरी क्यूट थिंग ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो वेरी प्रेशियस, व्हिच इज दैट दिस इमेज ऑफ योर्स जो बन गई है, व्हिच इज मनारा इज अपनी ही, ये गर्ल नेक्स्ट डोर है, ये हमारी है, सभी आके आपसे बात कर लेते हैं, सभी गले लगे, मनारा तो स्वीट ही है। बट भाई कभी तो होता होगा ना कि ओ गॉड, लाइक मनारा वांट्स टू ड्रॉप हर गार्ड, थोड़ा थक गई, थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई, बहुत बार। स्पेशली एयरपोर्ट्स में मेरे साथ होता है। भगवान, एक तो मैं आई एम नॉट दैट पर्सन कि एयरपोर्ट ऑनेस्टली हफ्ते में एक आधी बार 2 बार सब जाते हैं। मैं एयरपोर्ट स्पॉटिंग कभी नहीं कराती। मुझे लगता है कि मैं तो नहीं हूँ, बिकॉज मुझे अपना जूड़ा बांधना है, मुझे लिटरली कोम भी नहीं करना है, अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं, और मैं एक बैग लेती हूँ, इट्स लाइक अ शोल्डर बैग, एंड आई जस्ट वॉक लाइक। और उस टाइम कोई बोलता है पिक्चर, तो मेरा चश्मा ऐसे उतरता है क्या, या श्योर मैम। तो उस टाइम यू नो इट गेट्स लाइक टू मच। मुझे लगता है बस मुझे ना अभी जीने दो। बट या आई थिंक पीपल लव मी अ लॉट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वन थिंग आई डोंट लाइक व्हेन पीपल you know they cling on to you for pictures. I don't like it. You know, उस टाइम मैं बोल देती हूँ प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। ये चीज मुझे नहीं पसंद, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। मुझे चिपको मत बहुत ज्यादा। हाँ, ये मेरा भी है, पता है। आई एम जस्ट अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम लाइक ज्यादा जप्पियां लेना, ज्यादा पप्पियां लेना मत करो मेरे हाँ। अपने अपने में भी मैं नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी को भी शायद जाके इतना चिपकती नहीं हूँ, एक दूर से प्यार कर लो चलेगा। हाँ, मतलब ठीक है, आई लव यू, यू लव मी, बट या लेट्स डू अ सारंग and like be happy. This is called being territorial with our own selves. Right. But there are some people, you know, they'll ऐसे हेलो, हाँ चिपक गए, मतलब मैं आपकी, मतलब समझ रहे हो, मैं आपकी अपनी हूँ, बट मैं आपके अपने घर पे आप ऐसे चिपकते हो, then you get little, then again, then you know you have to say that sir please I don't like it. अब उसके बाद अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो I don't care. Manara, also I have to bring this up and say this. I'm so proud of you कि when you faced an incident, आपने publicly उसके बारे में stand लिया, right? And that has pros and cons. Like even I'm somebody, if I go through something, I put up out there and I say it. But instead of being helpful, there were also certain people who just went ahead and had nothing else to say but make a nasty comment out of that, right? Yeah. Respond to them. What should I respond to them? I think that some people, they don't know how to stand up for their own selves. तो वो दूसरे की प्रॉब्लम को क्या ही समझेंगे? There are those lukhas who are just on the internet. True. Sorry, but yeah, that is a word. It's a fact. Yeah. You might have any perception, but you also have to consider from a humanitarian point of view कि ये भी problems होती हैं, और I'm not somebody who will put up things on my day-to-day life on Instagram to create any kind of controversy. But same thing happened to me with the same specific airlines 4 दिन पहले. तो obviously, you know, एक anger होता है, and when I was trying to put it, I was literally giving them a धमकी. That you know, मैम, अगर वहाँ पे लोग खड़े हैं, मेरे सामने जा रहे हैं, बैग्स जा रहे हैं, तो मुझे भी जाने दीजिए. You know, just because आपको लग रहा है कि वो एक और फ्लाइट है, हम उसको 4 घंटे बाद भेज देंगे, हम 3,500-4 हज़ार रुपये और ले लेंगे, आप मुझसे अभी ले लो ना. I also think sometimes people cash on your celebrity factor. That's what I felt. Happens. Maybe it could be because people who were there, they were like, yeah ma'am, we also know you from this show, and we are also kind of, they could not say the words that we love you or something, but ma'am, there are certain protocols which we have to agree upon. And I said, I certainly stand by that, but please call your manager. But there is no manager on duty. So But I'm glad you brought this up. At least now they'll all be a little worried with other people, normal janta, who also go through. You will not believe, I never mentioned this. In fact, I forgot, and I must mention it. Then they literally put me on the other flight, and my gate number was 13 from the terminal 1 here in Mumbai. And again, I'm going on the same route, and they let me enter. उन्होंने मेरा पूरा security भी clear कर दिया. And I'm sitting there, I get an कॉल फ्रॉम द एयरलाइंस कि इस बार आप बोर्ड कर रहे हो ना मैम. मैंने बोला हाँ सर, मैं तो इधर ही खड़ी हूँ, मैं बोर्ड करने चाहती हूँ.
I went to look there was no 13 gate. Oh my god. And I'm like, where is the gate? And they said कि मैम वो तो नीचे वाले फ्लोर्स है. तो मैंने कहा, कहते उन्होंने आपको सिक्योरिटी क्लियर करने दिया? मैंने बोला हाँ. तो वो सिक्योरिटी तो नीचे था, नीचे वाला एरिया से सिक्योरिटी क्लियर करनी थी. तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, सब नींद में है क्या? मेरा ऐसा दिमाग हो गया था कि अगर मैं मतलब मैं अगर यहाँ बैठ ही रहूँ और मैं सोच रही हूँ कि हाँ सामने ही जाना है, इधर ही होगा 13 गेट, तो you would have missed this also. हाँ, तो मैं क्या, फिर मैं बोलती कि अब सिक्योरिटी वालों की गलती है कि उन्होंने मुझे कैसे क्लियर करने दिया, पर द फैक्ट ऑफ द मैटर उन्होंने क्लियर करने दिया. Crazy. I was like, is it just a bad day? It was Then just I a literally bad thought, day. should I put this also? I was like, नहीं चलो भला, जाने बहुत ही ज़्यादा देते हो हैं. गया, मेरे को अभी काम पे भी जाना है, जाने दे. जाने But yeah, दे. this also happened. Oh God. Okay. On a lighter note, let's come back to music as well. In specific, I have to ask you this: did you happen to share with anybody in your family other than your mom and your dad, like with either with PC or with Very Neatly, that you're venturing into music, and did you make them hear the song as well? Nothing in specific, very honestly. I developed this thing at the time when COVID really happened. So people were taking up एक activity, when people were taking up one activity or the other activity, cooking, cleaning, decorating the house. I picked up this activity. Oh wow. And then I started singing on my Facebook. And मेरे पास minus tracks online मिल जाता था और मैं गा देती थी. So I started getting monetized. It used to get like 5 million, 10 million on Facebook. Oh wow. Then, or maybe even more, I don't remember. I remember I was singing the Stones and I का गाना, तो वो तो बहुत ही reach किया था. So then I realized that, dude, this is something really cool. And when I was to sing a song Zara Zara minus track, तो तब तक COVID खुल गया. And I kind of recorded that song. And when I recorded it, I took it to Saregama, and they kind of like, and मैंने उसका video भी बना लिया था हैदराबाद में. And Saregama said, we want to sign you for a 6-song deal, and we'll do 6 covers together. And I was like, what? ये क्या था? Ah. So it just happened organically. And then when I went to US, I used to go there for a lot of Telugu conventions. Back then, I was getting a lot of invites as a guest. तो वो सिर्फ वीकेंड्स पे होती थी, बिकॉज अमेरिका फंक्शंस इन अ वे दैट ओनली वीकेंड्स पीपल आर हैविंग देयर ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज दे इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. तो तब वीकडेज में कुछ नहीं होता था, तो आई रियली शॉट दिस म्यूजिक एल्बम एट डिफरेंट स्पॉट्स, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक एट टाइम स्क्वायर, बट आई नेवर मेड एनी रील और video, because I was like, no, it's just a very small way to look at it. I'll do something about it once in my life. And I never knew that what it's going to be. Yeah. And luckily, I have a friend, Ghazala. She stays there in Chicago. So I told her I want to connect to some director who can, make this music album. And she connected me to a director who's doing New York Fashion Week. And we happened to be like traveling to New York on like different flights, but around the same time. So we had this meeting at the T2 Mumbai airport, wherein I told him that this is how the concept of the song is gonna be, and these are the locations I want to shoot. And he's like, who's gonna do the recce? I said, you don't need to do a recce. I have already done the recce. Oh wow. In my previous trip. And his vision was so strong, and we could actually match up to that same wavelength, जो बहुत rare होता है. Because I never wanted it to look too chatkila or very simple. The colors, the elements have to be correct. And we happened to shoot it, and it was just like in my bank. I wanted to do 5-6 songs, but then I think Bigg Boss happened, and life went on a 360-degree roller coaster, and I could not really release it. So now I was like, and I also wanted to be in the right frame of mind. And now it was the right time, and I'm doing laughter, and I was like, chalo isko release karte hain. And I released it on my channel. Amazing. No, that's actually a long journey. मतलब ये pre Big Boss से चल रहा था, and then it's finally happened right now. Actually, कोई भी चीज आप करो और आप खुद से करने जाते हो ना, तो टाइम तो लगता है. Yeah. Independently takes time to happen. Absolutely. I had this little chat with your mom, Piche, and I got to know that you're working tomorrow also, which is on your birthday. And she said that Hamesha say there are 2 people who used to say that we would work in our family on their birthdays. One is Priyanka and one is Manara. And you're also working on your birthday tomorrow. Yes. Give me a reason why, क्योंकि हम तो छुट्टी ले लेते हैं बाबा. Arey, mine is very simple. Either work or just go and travel. So now, because it's going to be a working birthday, so I look forward to travel, because until like
7th of April, I'm kind of like free, so I look forward to travel. But abhi, I'm lucky that I'm working on my birthday. Yeah. And last year was like a big, massive party and everything. My family was there and everything. So I was like, this time, of course, it's a working thing, so let's work. Let's work it.